बाबा आपके लिए Lisa, could you please come up on stage? A very, very good afternoon to all of you ladies and gentlemen. On behalf of India Institute of Ayurveda and All India Institute of Ayurveda and Ministry of Ayush, we would like to welcome all of you to this bright and a beautiful day. और आज के इस दिन का नाम है आयुर उद्यमन. ये हमारे कार्यक्रम का नाम है, and it has, I think, a valid reason behind it. By the end of the proceeding, we will all understand why. First of all, I'd like to welcome all the dignitaries seated on stage, and before we actually head to a formal welcome to everybody on stage, let's quickly go through what exactly are we here for today and what all is in the agenda. Well, as most of you are aware, All India Institute of Ayurveda is an autonomous institute under the Ministry of Ayush and is conceived as an apex institute of Ayurveda, which was inaugurated by Honorable Prime Minister of India on the 17th of October 2017. It looks like it has just been a few months, but it has been 3 to 4 years now, and within a very short period of time, this institution has created an ecosystem for innovation and other initiatives for creation and transfer of knowledge. In the series of the celebration of the 6th Ayurveda Day, we are going to be presenting some really important highlights with today's ceremony, which will include inauguration and launch of various statues. We will have the inauguration of the very first blood bank by us. We will also have the inauguration of the most awaited AIIA cane and the workshop on the same. Also, we will have the launch of qualification packs under the Ayush Subsector Skill Council, and we will also have the launch of diabetes protocol, PHI project brochures, and many other brochures. We will have the launch of most awaited Bal Raksha kit and the immunity booster Swarna Parashan, the golden drops as we call it. Apart from this, we will have the RISFITM journal launch as well. And as many of you are aware, this is the last day of the final year batch. So we will also be awarding the best student in this program here today. But before we move any further ahead, and before I formally welcome, we do the green welcome of our dignitaries on stage. Let's start the proceedings today with Dhanvantri Vandana, and I would like to request Dr. Karthik to please come up on stage and help us to start the proceedings with Dhanvantri Vandana. शंखं चक्रं जलौका दधतमृतखडं चारुदोर्भिश्च दुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छानुहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिलजगवल प्रौढिदावाग्निलीलम् Thank you,
डॉक्टर कार्तिक, अब मैं सभी महानुभाव जो मंच पर उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की एक शुभ शुरुआत करें. Can we all have a round of applause for the ladies and the gentlemen as we will now be lighting up the ceremonial lamp to mark an auspicious beginning to the proceedings for today. Lighting up the ceremonial lamp holds a very important significance in our culture. It is believed that when we offer our prayers to the Almighty, we are blessed with all the good wishes for any kind of new beginnings that we are starting. और आज इस कार्यक्रम के साथ हम कई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद लेना इस वक्त अनिवार्य है. और सभी महानुभावों के साथ यहाँ मंच पर दीप को प्रज्वलित कर हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की शुभेच्छा के साथ में आज की शुरुआत कर रहे हैं. Thank you so much, gentlemen. With that, we have some really important people who have accepted our invitation and joined us here today to celebrate the new beginnings. It's time that we acknowledge their effort and welcome them from the core of our heart. हमारे मंच पर उपस्थित अब सभी महानुभावों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और एक ग्रीन वेलकम करेंगे because we believe in green welcome. तो मैं अनुरोध करूंगी मैडम से, रंजना मैडम से कि वे हमारे बीच उपस्थित हमारे गेस्ट का स्वागत करें. सर्वप्रथम आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों से हमारे बीच अभिनंदन करें श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा सर, आप समय निकालकर आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हुए. वी आर truly honored with your presence here. Moving on, let's welcome amongst us, आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. हमारे बीच उपस्थित हैं श्री पशुपति कुमार पारस जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं. आगे बढ़ते हुए हम हमारे बीच अभिनंदन करते हैं श्री डॉक्टर मुझपारा महेंद्र भाई कालू भाई, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेंडिंग द वैल्यूएबल टाइम एंड जॉइनिंग अस हियर टुडे. मूविंग ऑन, अब हम स्वागत करते हैं श्री रामेश्वर तेली जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. very big thank you to you sir for joining us here today. आगे बढ़ते हुए मैं एक बार फिर मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो एक ग्रीन वेलकम करें. हमारे बीच उपस्थित हैं श्री शांतनु ठाकुर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. A big green welcome to all of you. Thank you ma'am, thank you ma'am. तो थैंक यू कहकर अब मैं सुजाता मैम से अनुरोध करूंगी कि वे आगे बढ़कर बाकी के महानुभावों का ग्रीन वेलकम करें. प्लीज गिव इट अप फॉर आवर डीन कैबिनेट्स एंड लेट्स वेलकम अमंगस्ट अस श्री केशव महांता, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ असम. थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे. आगे बढ़ते हुए हमारे बीच बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. Moving on, let's extend a hearty and a warm welcome to Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush. And last but not the least, I would like to welcome amongst us Professor Sachin Chaturvedi, Director General, RIS. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am told me to cut that out, but I think it is truly important that we value all the efforts and hard work that she has been putting into behind today's event. Please give it up
for Professor Dr. Tanuja Manoj Desai, Director, AIIA. Thank you so much, ladies and gentlemen. With that, we are now beginning with the very first address. आज का welcome address, as well as we will be discussing about what all the agenda includes and what all are we going to do today. Please put your hands together for Professor Dr. Tanuja Manoj Desai, Director, AIIA. Madam, could you please come forward for the welcome address. Namaskar. Galaxy of the, we can say, ministers, authorities of the Ayush, on the dais and off the dais. सबसे पहले तो हमारे मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, उनका मैं स्वागत करती हूँ। सर, आप आने से आयुष का पूरा एक नई ऊर्जा अपने प्रदान करती है, जो आज हम सब विटनेस कर रहे हैं। आपका स्वागत है। हमारी जो आज की दूसरी मुख्य अतिथि है, आज का कार्यक्रम ही बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आज हम स्टार्टअप पे, फूड स्टार्टअप पे बात कर रहे हैं, और इससे बड़े कोई अतिथि हमारे नहीं हो सकते। श्री पशुपति कुमार पारस जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सर, आप यहाँ आए, हमें लगता है कि हमारे फूड और ड्रग इंडस्ट्री और हमारी जो यंग है, उनका पूरा एक ऊर्जावान हो गया, उनका उत्साह का वर्धन हो गया। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे ही डॉक्टर, जो इंटीग्रेशन, फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इंटीग्रेशन कहा जाता है, हमारे डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई काडू भाई, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हु हिमसेल्फ इज ए डॉक्टर बट आर्डेंट व्हाट वी कैन से बिलीवर ऑफ आयुष। हाँ सर, हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से। श्री रामचंद्र तेली, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये स्टार्टअप इज फोकसिंग एंड ऑल्सो स्किलिंग फोकसेस ऑन जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। और आज का एक इतना बहुत अच्छा संयोग है कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी हमारे साथ है। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, हम आपका स्वागत करते हैं। श्री केशव महंता जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फैमिली वेलफेयर फ्रॉम आसाम, गवर्नमेंट ऑफ Assam, because the message from the state is now percolated to the message from central is percolated to states। और आप यहाँ आए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वैद्य राजेश कोटेजा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, who himself believes on calling himself as a वैद्य, that's the confidence आयुष सेक्टर has, तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे एएस स्ट्रॉन्ग सपोर्टर श्री प्रमोद कुमार पाठक जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और RIS के डीजी सचिन चतुर्वेदी, जो हमारे ही साथ है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और डायस के सामने बहुत मिनिस्ट्री के सभी एडवाइजर्स, डायरेक्टर्स, मिनिस्ट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ है, उनका हम स्वागत करते हैं। WHO ऑफिस, नीति आयोग, हमारी कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन CCRAS, MDNY, RAV, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, इन सभी से हमारे यहाँ हमारे MOU पार्टनर्स, IGIB, ILBS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IITs, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ थे। हमारे अपने GP के मेंबर श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी और विश्व आयुर्वेद परिषद, सेवा भारती, आरोग्य भारती, के सभी रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड, ESIC के एडवाइजर्स हमारे साथ है। वी हैव द प्रोजेक्ट कॉल्ड एज कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संगठन धन्वंतरी रथ। So for that was not possible without the support of दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के ACPs और सभी ऑफिसर्स आज यहाँ आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। NCRSM के सेक्रेटरी और उनके सभी सदस्य आज हमारे साथ हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिनके लिए ये प्रोग्राम किया है, ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव, नस्या के रिप्रेजेंटेटिव, नीमा रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस within in the near vicinity of NCR, they are also with us, and we also have the media representatives and our speakers for tomorrow's national seminar. I can see Mr. Choldi, I can see Prabodh Halde, I can see
IIT Anil Bali, because it's an industry academia collaboration where incubation center is being run. And not the least, all our postgraduate scholars, final year and all the batches, MD and PhD scholars, our faculty member and staff, we welcome you all on behalf of All India Institute of Ayurveda and Ministry of Ayurveda. This is just in a brief. I would like to say that IIT has recognized as a host institution under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, that is MSME, Government of India, which would provide opportunities to the innovators in developing and nurturing their ideas. It's the incubation center which we would like to inaugurate with the hands of auspicious hand of the ministers as an icon. Taking that further, today we have gathered to inaugurate the incubation center, and this incubation center will give the title as incubation of the students, by the students and for the students. So that is a new age entrepreneurs, boosting the economy and generating the wealth and employment at incubation, and it is a sort of industry academia partnership with IITs and various research parks. We would be generating the ideas, and the innovation would be continued in this sector. And today we will be inaugurating the incubation center, and the idea of ethos of concept to market, boosting the market, that would really boost up the market of the not only drug market but the food industry market also, because this year the concept is, the mission is Poshan, Ayurveda for Poshan on the 6th Ayurveda Day. So this year the startup program is focused on incubating and giving the mentor-mentee relationship to the incubatees who would come out with the innovative ideas on Ayurveda Poshan. Considering the cultural and the food biodiversity of India, we would like to help the students to bring out with the healthy, tasty and yummy dishes which would boost up the food market as well as the drug market. And that's why we have organized the national program on A to Z of the startup tomorrow. And I welcome all the representatives from the national institution, Ayush institution, industry, private organizations who would be joining us. More than 100 participants who are already working with this concept, and they will bring their capacity building on the knowledge tomorrow, and the inauguration of that workshop also will be held. As we know that during COVID crisis, the task of managing the spread of disease, that was the mammoth task, was done by all our corona warriors at All India Institute of Ayurveda. And we had come out with the Ayu Raksha Kit, Swasthya Raksha Kit for Delhi Police in public health. And in this series, we have developed Bal Raksha Kit, which is when there is a children community across India and outside. So we'll be providing them with the kit which will boost up the immunity of the children, and we would request the honorable ministers to do the honor in inaugurating that with this Suvarna Prashad. And sir, I would like to inform you that during COVID-19, our scholars, our students, they were the corona warriors. When everyone was sitting as a work from home, and when there was official ban and the बंद था, तब हमारे स्कॉलर कोविड हेल्थ सेंटर में, धन्वंतरी रथ में दिल्ली पुलिस के लिए काम कर रहे थे. उनका आज लास्ट वर्किंग डे है. I would request everyone to join hands to just acknowledge their contribution. These are involved in the service of the nation, and इसमें से best outgoing scholar. Everyone is hero for us. But as a best outgoing scholar, we would definitely acknowledge as a representative, and we would request to do the honor to our. And we have a skill council, Ayush Sector Skill Council, and Ayush Skill Council has developed 8 qualification pack for developing the environment in the Ayush sector, and we have CEO and Dr. Arun Agrawal who are also mentoring us with us. So we will be releasing those QPs also. We have Public Health Initiative Project 6, more than that, under the Ministry of Ayush. Launching of the brochures will also be done. We have developed our diabetic protocol, that also would request to launch. And also NMPB has come out with a very novel calendar and a poster for the region-specific medicinal plants. I think that also definitely
everyone would like to have with the greetings on the Diwali postcard on the for the Diwali wishes, and with many things in this bouquet of the activities, release and launch. I once again thank, and that is not the least, but the RIS report also will be released, and detail about that will also be about Sachin Chaturvedi ji, who will be our PG of RIS, will tell us about that. So before I conclude, and welcome everyone, and I again welcome all the ministers to the event and thank all the ministers for their kind presence, and the Ayush Ministry under Sri Sarvananda Sonowal ji, Mahendra Bhai Mujipara ji, Rajesh Koteja ji for their continuous guidance and support. I can say we can do better than anyone else can. Thank you. Thank you so very much, ma'am, for throwing light on the agenda for today and so warmly welcoming the dignitaries and appreciating the hard work done by the whole team in the difficult times. We have been together, we will always be together in all difficult coming times, in case if we have any, and we will fight it together. Moving on, I would like to request Vaidya Rajesh Kotecha ji, Honorable Secretary, Ministry of Ayush, to please kindly come forward for the address. अब आप सभी को संबोधित करेंगे राजेश कोटेचा जी, जो तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय मंत्री श्री पारसी, बोथ ऑनरेबल मिनिस्टर्स, माननीय मंत्री डॉक्टर मुजपरा महेंद्र भाई जी, माननीय मंत्री श्री रामेश्वर देवी, माननीय मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी और माननीय श्री मंत्री श्री केशव महंता जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, श्री सचिन चतुर्वेदी जी, श्री पाठक जी, प्रोफेसर तनुजा मिश्री जी, मंच के सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ और अलग अलग एमओयू पार्टनर्स, अलग अलग संस्थाओं से पधारे विशेषज्ञ, अलग अलग क्षेत्र भारतवर्ष के पूरे अलग अलग प्रांतों से पधारे अतिथि, सभी फैकल्टी, सभी छात्र, मिनिस्ट्री में मेरे कलीग, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, एडवाइजर्स, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ मीडिया के भी काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज ये कार्यक्रम विशेष इसलिए है कि 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था की, अखिल भारतीय आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना आयुर्वेद दिवस पर करी 2017 में। 2 दिन के बाद आयुर्वेद दिवस है और इस संस्था को 4 वर्ष पूरे हुए। 4 वर्ष में जो फिनोमिनल ग्रोथ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने किया है, ये एक प्रकार से हम सब के लिए बेंचमार्क है कि कैसे एक संस्था को हम यदि सब मिलकर के कुशल नेतृत्व के साथ यदि आगे बढ़ाते हैं तो कैसा सुंदर काम हो सकता है। इस इंस्टीट्यूट का दिल्ली में होने से वहाँ पर बहुत सारे ऐसे VIPs वहाँ चिकित्सा के लिए जाते हैं, तो मुझे फर्स्ट हैंड फीडबैक भी मिलता है। तो मैं आपको सबसे शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक मुझे एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। आपके जो लीडर है प्रोफेसर तनुजा मिश्री जी और आपकी पूरी टीम, सभी छात्र, क्योंकि ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर सब लोग चिकित्सक हैं और शोध का भी कार्य करते हैं, चिकित्सा का भी कार्य करते हैं। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इतने अलग अलग क्षेत्र में आप लोगों ने कार्य खड़े किए हैं। आज का कार्यक्रम उसका होता है कि तनुजा जी एक के बाद अपनी किटी में से नई चीज़ें बता रही थी, अब ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, किसी से समथिंग वेरी इनोवेटिव। उसके लिए आप
सब बधाई के पात्र हैं। आज जैसे हम जानते हैं कि साधारणतः ऐसा देखने को मिलता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उसका कनेक्ट इंडस्ट्री के साथ होता नहीं है। हम साइलोज में काम करते हैं, इंडस्ट्री अपना काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपना काम करते हैं। ये अच्छा उदाहरण है आज का कार्यक्रम कि हम एक एजुकेशन प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है उनके पास से हम एक नया सुनने को मिल रहा है तो हमारे क्षेत्र में बहुत अनकॉमन है। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंक्यूबेशन सेंटर फॉर स्टार्टअप्स। ये हमारे क्षेत्र में सबसे पहला है और अभी हम ये सब सपना देख रहे हैं कि सीरीज ऑफ सच इंक्यूबेशन सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अक्रॉस द कंट्री। लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में सबसे पहला है। इसके लिए फिर मैं एक बार आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये विशेष रूप से आयुर्वेद दिवस की जो थीम है इस वर्ष की आयुर्वेद फॉर पोषण उसको साथ अलाइन करके इसको रचना की गई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे स्टार्टअप्स या इनोवेटर्स या एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ स्थान नहीं है, लेकिन प्रारंभिक ध्यान यहाँ फूड बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए रहेगा और उसकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए कल का जो कार्यक्रम है उसको रचना की गई है कि देश भर से ऐसे इनोवेटर्स को बुलाया है, जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जो आपस में संवाद करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे और आदान प्रदान करेंगे। तो ये बहुत अच्छा बिगिनिंग है। व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इज कि जैसे मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा अपने प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी के लीडरशिप में RIS ने अभी आयुष मंत्रालय के लिए एक स्टडी किया। हमने वहाँ एक वर्टिकल एस्टैब्लिश किया है FITM फोरम ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन। FITM RIS के माध्यम से स्टडी हुआ जिसकी आज लॉन्चिंग करेंगे। उसके आंकड़े में नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसका चाम खत्म हो जाएगा, माननीय मंत्री जी बताएंगे। तो वो बहुत जबरदस्त है। CIA का एक स्टडी था 2016 में, उसकी अपेक्षा 6 गुना वृद्धि 4 साल में सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की 6 गुना वृद्धि हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। खास करके कोविड के समय में हाथों हाथ जैसे आयुष सेक्टर ने काम किया, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत बाकी संस्थाओं ने, देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने मिल करके जो बहुत बड़े बड़े कार्य हुए, बहुत वैज्ञानिक अध्ययन हुए, जिसका परिणाम भी सामने आए, रिपर्पज मेडिसिन भी सामने आई और उसके कारण कॉमर्स में कितना कन्वर्जन हुआ। ये बहुत एक प्रकार से हमारे लिए एक भविष्य के लिए ऊपर की तरफ, भविष्य की तरफ देखने का एक रास्ता भी बताते हैं कि कैसे सेक्टर को हम स्केल अप करें। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग आयुर्वेद दिवस को जब हम मना रहे हैं उस समय इसका संकल्प लें कि हम इसको तीव्र गति से और आगे लेके जाएंगे। ये एक आज का हमारा संकल्प होना चाहिए। माननीय मंत्री जी श्री सर्बानंद जी सोनोवाल जी और माननीय मंत्री जी डॉक्टर मुस्परा जी जब से मंत्रालय में आए हैं, हम लोग पहले 12 घंटा काम करते थे, 18 घंटा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी एनर्जी और हमें इसकी शिकायत नहीं है। वी आर एंजॉयिंग। हम लोग आनंद से करते हैं। हम लोगों की टीम बहुत अच्छी है। मेरे सिवाय हमारे मंत्रालय में, मेरे और पाठक जी के सिवाय हमारे मंत्रालय में सभी काले बाल वाले लोग हैं और हम भी युवा ही है, ऐसी बात नहीं। तो युवा लोगों का पूरा टीम है और टीम मिलकर के हम खूब जबरदस्त काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से नए नए क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उसका एक आध दो ग्लिम्स से देना चाहूँगा। जैसे पूरे आयुष क्षेत्र में किसी भी संस्थान के पास ब्लड बैंक नहीं है। दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द आयुष सेक्टर। आज इसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने बाल रक्षा किट की बात करी, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इज द फर्स्ट अमाउंट क्रिएटिंग एंड इशूइंग द गाइडलाइंस फॉर द चिल्ड्रन, ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर द कोविड प्रोटेक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत पूरे देश से सभी का समर्थन लेकर के, संवाद करके, सबका मार्गदर्शन लेकर के इसको जारी किया गया। पूरे कोविड के समय में 137 स्टडी हुए, उसमें से 101 पूरे हो गए और अभी आज के दिन में 30 पब्लिकेशन तो ऑलरेडी आ गए हैं, 25-26 प्री प्रिंट में है,
दूसरे 47 ऐसे हैं जो रिव्यू प्रोसेस में है। तो मिलाकर के 100 के ज़्यादा पब्लिकेशन आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि आयुष के क्षेत्र में आप लोग एविडेंस जनरेट करिए, आप लोग अच्छा काम करते हो, लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है, वो बात पुरानी हो गई। हमने पिछले दिनों में सबने मिलकर के बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। और मैं एक ही उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं आप सबको निवेदन करूँगा जो आयुष क्षेत्र से नहीं है कि आप एक बार आयुष रिसर्च पोर्टल करके आप गूगल पर टाइप करिए। हमारा एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, जो CCRS के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। उसमें 33,000 I would repeat 33,000 publications which is published in peer-reviewed index journals। ऐसे 33,000 publications का वहाँ इंडेक्सिंग किया गया है और वो सर्चेबल फॉर्मेट में है। आप चाहोगे कि हमें डायबिटीज के ऊपर क्या रिसर्च हुआ है तो यू कैन फाइंड इट इन क्लिक ऑफ द माउस। इतना बड़ा कार्य भी आयुष मंत्रालय के माध्यम से अभी हो रहा है और इसका रिफ्लेक्शन भी हुआ कि जैसे मेन स्ट्रीम हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ में अभी जो नए कार्य हो रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में मिलकर के, तो आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर के अंतर्गत पूरे देश में आयुष मोडालिटीज का इम्प्लीमेंटेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हमारा आयुष ग्रिड का, भारत सरकार की आयुष ग्रिड की जो योजना है उसका आपस में समन्वय भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 55 से ज़्यादा प्रकल्प प्रोजेक्ट IT रिलेटेड चल रहे हैं जो आयुष रिलेटेड सभी चीज़ों को IT इकोसिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा ये एक ग्लिम्स देना चाह रहा था, मेरे पास जितना समय है उसी में मैं थोड़ा मैक्सिमम कोशिश कर रहा था। आज के दिन में ये जो विशेष चीज़ें जो प्रारंभ कर रहे हैं उसका एक आगे का जो हम विजुलाइज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इंग्लिश इंडिया के साथ मिलकर के हम अभी एक योजना बना रहे हैं कि आयुष का एक फंड्स ऑफ फंड हो, आयुष का एक स्टार्टअप इकोसिस्टम हो और उस इकोसिस्टम के माध्यम से जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में हमने पिछले दिनों में बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क एस्टैब्लिश किए हैं, उसके अंदर न्यू एज इनोवेटर्स को हम इन्वॉल्व करें, उनको हम मौका दें और उसके द्वारा स्केलिंग अप करें, बहुत बड़ा कार्य करें। क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है वो हमें बहुत उत्साह दे रही है कि हमारा साइज यदि मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा है तो सर्विस इंडस्ट्री का भी लगभग उतना ही है, तो मिलकर के हम बहुत बड़ा कार्य अगले दिनों में कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो स्टार्टअप के बारे में जो एक स्टेटमेंट उसको उद्धृत करके मैं मेरी बात पूरी करूंगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स आर न्यू टाइप्स ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स इन द कंट्री और ये वास्तव में स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रस्थापित भी कर रहा है। हमारे यहाँ रोज नए नए यूनिकॉर्न आ रहे हैं और मैं आपको जानकारी देकर के मुझे अच्छा लग रहा है कि आयुष सेक्टर में भी ऐसे 4-5 यूनिकॉर्न आ गए हैं। यूनिकॉर्न का मतलब जिसकी साइज जो है $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई, ऐसे पिछले दिनों में आए हैं और उसका फाइनलाइजेशन हो रहा है सो दैट वी कैन एक्चुअली डिक्लेयर दैट यस देयर आर 4 or 5 यूनिकॉर्न इन आयुष सेक्टर ऑल्सो इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। आप सबका खूब खूब धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और आप सबको धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for all the kind and enlightening words. आगे बढ़ते हैं। बातों बातों में जैसे कि सर ने बताया कि मैडम होती थी से बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। एक बहुत ही खास बात है जो हम आप सभी को बताना चाहते हैं। मैम probably skip this one. She's asked me to inform you all of that we also have a very important highlight, the Ayurveda Food Expo, which will be another very major attraction of the event to exhibit strength of Ayurveda in food sector through showcasing various innovative recipes like ready to eat healthy foods and many other options. So I'm hoping that you guys are all also looking forward to the Ayurveda Food Expo. With that, उसी किटी में से एक और खास चीज के बारे में अब बात करते हैं। सर has already spoken highly about the significance of the blood banks, and we truly understand how important it is to have as many blood banks for the ease of the healthcare workers, for the donors, for the receivers. To facilitate the same, we have come up with a high-end, very well-equipped blood bank. It's a very unique initiative by Ayush, and as very well recognized by Secretary Sir, it is the very first blood bank that we are having. और शायद ही किसी मतलब ये जो हमारा
पब्लिक हेल्थ सेक्टर का है, आयुष जैसे इंस्टीट्यूशन है. हम आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन टू डू सो वी टेक दिस as a matter of very pride, and we are so happy to announce the inauguration of the blood bank. इसके लिए क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड है और एक डॉक्टर से बेहतर ये कौन समझ सकता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट मैटर है. सो वी हैव अमंगस्ट अस डॉक्टर मुंजुपारा Mahindra Bhai Kalubai, Honorable Minister of State, Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development. I would request Sir to kindly unveil and inaugurate, virtually inaugurate the blood bank आप सभी के बीच. And as I said, he himself is a doctor, वो खुद एक डॉक्टर है. So इस ब्लड बैंक की अहमियत को वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. इनफैक्ट हम सभी, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम में से किसी के जानकार को जरूरत पड़ती है और एक ब्लड बैंक का काम आता है. So here we are inaugurating the first ever blood bank by Ayush Group. With that, I would like to request Sir to please kindly address everybody. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Munjpara Mahindra Bhai Kalubara, the Minister of State, Minister of Ayush and Ministry of Women and Child Development. सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी, कृपया आप डाइस पर आकर हमारे सभी यहाँ साथियों को संबोधित करें. रिस्पेक्टेड हमारे बड़े भाई, ऑलवेज मुझे छोटे भाई की तरह रखते हैं. हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, जैसे हमारे दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस जी, रिस्पेक्टेड श्री रामेश्वर तेली जी, रिस्पेक्टेड श्री शांतनु ठाकुर जी, और हमारे सोनोवाल साहब हमें कभी कभी लाइट मूड में है तो हमें बोलते हैं कि जो आपका कृष्ण भगवान है ना, वो हमारी रुक्मणी जी को हमारे देश में से शादी करने के लिए ले गए थे, और उसी से आए हमारे प्यारे गेस्ट, वो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड असम के हेल्थ मिनिस्टर केशव महंता जी, श्री जिसमें एनर्जी फुल ऑफ है जैसे हमारे राजेश कोटेचा जी, पूरा डिपार्टमेंट लाइव रखते हैं. ऐसे दूसरे हमारे सेक्रेटरी श्री पाठक जी, और ये तनुजा मैडम जी. वैसे तो सब लोग आयुर्वेद डॉक्टर है, उसके बीच में मैं एक एलोपैथी डॉक्टर खड़ा हूं तो थोड़ी डिस्कम्फर्ट तो होती है. इसलिए हमारा मैंने और सोनोवाल जी ने डिसाइड कर दिया है कि फ्यूचर में हम इंटीग्रेटेड ही बना देते, मतलब आपके और हमारे और आपके बीच में जो फासला है बिल्कुल कम हो जाए और सब एक साथ ही हो जाए. वैसे तो आज काफी कुछ डिस्कस होने वाला है. बाल रक्षा किट है, 16% ड्रॉप्स है, आयुर्वेद फूड एक्सपो है, कुछ टेक्निकल स्टाफ है, पंचकर्म का है, फिजियोथेरेपी का है, डाइट थेरेपी का है, और कुछ बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट्स को भी आज ऑनर करने वाले हैं. तो आज तो काफी लोग आए, लेकिन जैसे आज मुझे मेरा सब्जेक्ट ही मिल गया है एक ब्लड बैंक का ओपनिंग करने का, तो मैं अपना थोड़ा डिस्कशन चालू कर दो. तो फर्स्ट तो द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा has established a well-equipped blood bank which was inaugurated just now. Being a doctor myself, I am happy to share with you that this new blood bank will have high-end equipment required for blood collection, donation and transfusion procedures.
These equipment in All India Institute of Ayurveda have been selected with objective to provide the safest possible specific blood component in the shortest possible time to the patient and will facilitate immediate and long-term needs of the healthcare system. It is important that donor feels safe while donating blood, and with high-end filtration mechanism in the All India Institute of Ayurveda under skilled and trained doctors, we ensure that all patients are tested comprehensively before receiving and donating blood. The blood bank will be functional around the clock throughout the year and will have facility like donor screening, blood component preparation, and issuance of blood products. I hope that this center will cater to needs of patients from Delhi and adjacent states suffering from thalassemia patients, sickle cell anemia patients, hematological disorders, emergency accident patients, and pregnancy-related complication patients. I wish the director and her team all the best. Thank you. Thank you very much, sir, for your support towards us as always. और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी खुशी के साथ आज आपने इस ब्लड बैंक को इनॉग्रेट किया है, उतनी ही दृढ़ता के साथ हम लोगों की सेवा में समर्पित रहेंगे आने वाले समय में. थैंक यू वंस अगेन. आगे बढ़ते हैं. इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट इनॉग्रेशन, a very important one. This is going to be a highlight of today's event, ladies and gentlemen. We are going to be doing the inauguration of AIIAICANE and the workshop on the same, startups in Ayush sector, scope and opportunities. This is going to be really interesting because ICANE is first of its kind incubation center at the All India Institute of Ayurveda for nurturing entrepreneurship and fostering Ayurveda knowledge-based startups. The institute aims to be the hub of innovative and high-impact ventures in the field of Ayurveda and provide conducive environment for research and technology-driven innovations. We are starting with a very prominent food startup, क्योंकि पहला जो startup जिसे हम highlight कर रहे हैं, जिसे हम support कर रहे हैं, वो एक food startup है और हम आप सभी का और स्पेशली मिनिस्ट्री का सपोर्ट इसमें चाहते हैं कि रहे. I would like to request मैं अनुरोध करूंगी श्री पशुपति कुमार पारस, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से. सर प्लीज आप बटन दबाकर आप लॉन्च करें, इनॉग्रेट करें ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ICANE. और मुझे उम्मीद है कि इससे जो नया टैलेंट है, वी हैव द यंग जनरेशन विच इज फुल ऑफ न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज एंड टैलेंट, एंड दे जस्ट नीड बैकअप एंड सपोर्ट. तो उनको स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा जो हमारे सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से और हमारी ओर से उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके उसे काम में, उसे रूप में लाने के लिए काफी होगा. अब मैं अनुरोध करूंगी श्री पशुपति कुमार पारस जी से कि सर आप कृपया डायस की ओर आएं और हम सभी के समक्ष दो शब्द कहें. परम आदरणीय माननीय मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर कालू भाई जी, माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, माननीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी और असम के हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय केशव महंता जी, सचिव आयुष मंत्रालय श्री राजेश कोटेजा जी एवं इस सभा में उपस्थित थे सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, बहुत पूरे देश से आए हुए हमारे आगंतुक लोग, सभी को नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ. सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ
जिनकी दूरदृष्टि के कारण भारतीय आयुर्वेद प्रणाली को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़ने वाली एक प्रणाली है। बीते वर्षों में आयुष मंत्रालय और उनकी योजनाओं से आम जनता को लाभ पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2017 में प्रथम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य देश के लोगों के बीच आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाना और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक घर घर तक पहुँचाना। कोरोना महामारी के दौरान आयुष मंत्रालय ने कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद का सहारा लेकर देश के लोगों को घर में रहकर महामारी से लड़ने के लिए जागरूक किया। आयुष मंत्रालय के कार्यों ने लोगों के बीच बीते वर्षों में आयुर्वेद के प्रति विश्वास को प्रज्वलित किया। आयुष मंत्रालय के द्वारा 6ठे आयुर्वेद दिवस के लिए इस वर्ष आयुष और पोषण को थीम बनाया गया है। इसके तहत आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ, ब्लड बैंक का उद्घाटन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा विकसित 16 साल तक के बच्चों की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए बाल रक्षा किट का लॉन्च किया जाना और साथ ही 10,000 बच्चों को यह किट मुफ्त में प्रदान करना शामिल है। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आयुर्वेद फूड प्रदर्शनी का आयोजन है, जिसमें खाने के लिए तैयार हेल्थी फूड, विभिन्न नए प्रकार का खाद्य व्यंजनों को प्रदर्शित करके खाद्य क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को दर्शाया जाएगा। यह प्रदर्शनी आयुर्वेद के विभिन्न हितधारकों को एक छत के नीचे लाने के लिए आदर्श मंच के रूप में काम करेगा। आयुष मंत्रालय की तरफ फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय का प्रथम लक्ष्य फूड प्रोसेस को एक संगठित मंच तक प्रोसेसिंग व्यवस्था करके करने में मदद करना है। हमारे मंत्रालय के माननीय प्रधानमंत्री किसान सप्ताह योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नत योजना और उत्पादन प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य पूरा करने हेतु अवसर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई PMFME योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहायता प्रदान करना। फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रत्येक देश के 707 जिलों में एक जिला एक उत्पाद को चयनित किया गया है और इन उत्पादकों में कोई ऐसी उत्पाद भी शामिल है जो आयुर्वेद से संबंधित है। इससे संबंधित उद्योग उस जिले में स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए हमारे मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है और ऑनलाइन आवेदन भी प्राप्त किए जा रहे हैं। रेडियो से निवेदन है कि आप इस अवसर का लाभ उठावें। फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय के PMKSY और PLI योजना के अंतर्गत रेडी टू ईट और रेडी टू कुक हेल्थी कुक फूड्स पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय के तहत आने वाले डिजिटल संस्थाओं के छात्रों शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे पोषण आधारित शोधों की जानकारी कंपनियों के साथ साझा की जा रही है ताकि नए खाद्य उत्पादों का निर्माण हो सके। शोधकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य क्षेत्र में आयुर्वेदिक पहलुओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय एक साथ एक महत्वपूर्ण कार्य करे और फूड सेक्टर में आयुर्वेद के महत्व पर जोर देने तो मुझे लगता है कि इससे न केवल आम जन को लाभ मिलेगा बल्कि युवा उद्यमियों जो इन दिनों क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए एक बेहतर मिलेगा। अवसर पर अपने विचार रखने का मौका देने के लिए माननीय मंत्री इस सवाल धन्यवाद की तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि जो आईकेन का सबसे पहला हम जो सपोर्ट दिखा रहे हैं वो फूड स्टार्टअप्स के लिए दिखा रहे हैं और मिनिस्ट्री का सहयोग होने के साथ ही इन सभी बच्चों को जो ये नए नए आइडियाज लेकर आते हैं जिनके स्टार्टअप को सपोर्ट
किया जाएगा. It is going to be proving to be a very brighter future for the next gen. Thank you so much sir for all the love and support. अब आगे बढ़ते हैं. बात हो रही है नए टैलेंट की, बच्चों की, स्टार्टअप्स की, उनके लिए सपोर्ट की. तो बच्चों के टैलेंट और उनकी मेहनत को सराहना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है. और इसीलिए अब हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज फाइनल ईयर का ये जो बैच है उनके आखिरी दिन है. तो जो सबसे बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट होगा उसे यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा. वी आर गोइंग टू बी अवॉर्डिंग द बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट फॉर 2018 to 2021, क्योंकि अब आप में से कोई एक यहाँ पर आएंगे इस मंच पर इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए. मैं मैम से अनुरोध करूंगी, पूजा मैडम से, कि वे बेस्ट स्टूडेंट को अनाउंस करें. और साथ ही मैं अनुरोध करूंगी श्री सर्बानंदा सोनोवाल, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, से कि सर आप आगे बढ़कर हमारे बेस्ट स्टूडेंट को अवार्ड दें. All the final year scholars, everyone is a hero because they are the real heroes in the COVID warrior. 2018 से 2021 बैच के हर एक ने 24 घंटा 24/7 बहुत सराहनीय कार्य किया है. लेकिन we had the marks based on the extracurricular activities, based on the scientific research, presentation and all together overall personality. And we, हमारे सभी अध्यापक, सभी स्टाफ, सब ने मिलके इन सभी बैच को एक पंखों में बल दिया. वो उड़ान भरने के लिए रेडी है. हमारी सभी बैच, उनको हम सदिच्छा देते हैं. लेट दे बिकम द ग्लोबल जायंट्स टू cater the healthcare needs through this startup and many other initiatives they have done in their All India Institute of Ayurveda. And may I take this opportunity and honor to declare the name of best outgoing scholar. Everyone anticipates the same name. Join me to welcome and announce Miss Charu Sharma. Congratulations, Dr. Charu, with your oratory, with your dedication, with your commitment. You have really managed the emergencies in COVID healthcare. You have gone to the containment zone and you have done a lot of work which really has contributed. So there we have the award for best outgoing student for 2018-2021, Miss Charu Sharma. And what a beautiful moment, such a privilege to have such amazing बैच. सभी, जैसे कि मैंने बताया, सभी बच्चे अपने आप में ही, सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है. बट ऐसा होता है कि बहुत अच्छे में से कभी आप एक सर्वश्रेष्ठ को चुनना पड़ता है based on different criteria that ma'am has already announced. So congratulations to Ms. Sharma, and congratulations to all the other students of the batch who have outperformed their limitations and have gone beyond the limits to serve the country, to serve its people, and to serve the humanity. Thank you. You guys are all warriors. You guys are all heroes. And we thank all of you and congratulate all of you. Moving on, we have the launch of qualification packs under Ayush Subsector Skill Council, जिसको हम HSSC के नाम से जानते हैं. And also the launch of Diabetes Protocol, the PHI project brochures. I would like to quickly read out a little bit about this. The main objective of the council is to strengthen the Ayush system with skilled manpower and employability to youth by emphasizing the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana. To achieve this objective, Ayush Subsector and HSSC has created various national committees under the leadership of eminent experts from across the country. These experts have devised and standardized curriculum and standards for various qualifications that are being released today. ये सारे के सारे जो releases आज आप देखेंगे, इन सभी के साथ हमारा एक ही मकसद है. The motto is one country, one standard. और जितना ज़्यादा skilled होगी हमारी मैन पावर, जितना ज़्यादा skilled होगी, जितना technically sound और advanced होगी,
उतना ज़्यादा बेहतर काम करने का मौका उन्हें मिलता है और काम भी अच्छा होता है. That exactly is the point that we are talking. I would like to now request Shri Rameshwar Teli ji, Honorable Minister of State, Ministry of Petroleum and Natural Gas and Ministry of Labour and Employment, to please come forward for the launch of qualification packs under Ayush Subsector Skill Council. Also requesting Dr. Arun Agarwal, Governing Council Member HSSC, Mr. Ashish Jain, CEO Health Sector Skill Council, to join them on stage for the launch of the qualification pack. इसके बाद हम डायबिटीज प्रोटोकॉल और PHI प्रोजेक्ट के ब्रोशर्स का लॉन्च करेंगे. May I now request Shri Keshav Mahanta, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of Assam, to kindly come forward to launch the diabetes protocol and the PHI project brochures. We are now witnessing the launch of the diabetes protocol and the PHI project brochures. There we go. I think we have unveiled it. Many congratulations and thank you so much, gentlemen. और इसी के साथ अब मैं अनुरोध करूंगी श्री रामेश्वर तेली जी से कि सर आप कृपया डाइस पर आए और कुछ शब्द कहें. नमस्कार. श्री सर्वानंद सोनवाल जी, असम के एक्स-CM आयुष एंड पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री पशुपति कुमार पारस जी, मंत्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई कालू भाई जी, राज्य मंत्री आयुष एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्री शांतनु ठाकुर जी, राज्य मंत्री पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री केशव महंत जी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, वैद्य राजेश कोटेचा जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, श्री प्रमोद कुमार पाठक जी, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, डायरेक्टर जनरल IRS, प्रोफेसर प्रमोद कुमार पाठक जी, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज जी, निदेशक AIIA मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, नमस्कार. आजादी के अमृत महोत्सव और 6वें आयुर्वेद दिवस से जुड़े समारोह की श्रृंखला के रूप में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह आदि के आयोजन में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.
आयुर्वेद भारत की पुरानी चिकित्सा पद्धति है। संस्कृत मूल के इस शब्द का अप्रत्यय है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद हमें बीमारी होने की मूल मंत्र, मूलभूत कारणों के साथ साथ इसके समग्र निदान के विषय में भी बताता है। प्राचीन काल में भारत में आयुर्वेद की शिक्षा ऋषियों द्वारा दी जाती थी और चरक संहिता इसका एक प्रमुख ग्रंथ है। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के महत्व को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की एवं आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA को 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश भर में आयुर्वेद क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगभग 400 आयुष संस्थान AIIA के सहयोग से काम कर रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि इस मंगल अवसर पर यहाँ उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण आयुष मंत्रालय के अधीन विभिन्न परियोजनाओं का आज लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला बाल सुरक्षा किट और स्वर्ण पाचन ड्रग्स की शुरुआत की जाएगी। AIIA ने आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल रक्षा किट और स्वर्ण पाचन ड्रग्स को विकसित किया है। आयुर्वेदा फूड एक्सपो इस योजना का एक अन्य प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें विभिन्न इनोवेटिव व्यंजनों जैसे रेडी टू ईट हेल्थी फूड आइटम और अन्य फूड आइटम को प्रदर्शित करके फूड में आयुर्वेद की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में था तब भी इस विषय पर मंत्रालय में गंभीर विचार विमर्श होता रहा। आज आयुर्वेद फूड एक्सपो के आयोजन के बारे में जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि AIIA द्वारा आयोजित सेमिनार में उपस्थित मंत्रालयों के अधिकारी एवं विशेषज्ञ गण का विचार विमर्श करेंगे और उन उपायों की अंतिम रूप देंगे जिसमें हम भारत में आयुष सेक्टर को और आगे ले जा सके। आज मुझे आयुष मंत्रालय के लिए गठित हेल्थ केयर सेक्टर स्किल्स काउंसिल के लिए क्वालिफिकेशन पैक्स का लॉन्च करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। यह क्वालिफिकेशन पैक विश्व स्तर पर सेवा देने के लिए कुशल आयुष कर्मियों के विकास में मदद करेगा। AIIA 2018 से आयुष क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन में आयुष मंत्रालय के निर्देश के तहत नोडल संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। जैसा कि हम भारत सरकार के तहत कौशल भारत कार्यक्रम के महत्व और विभिन्न क्षेत्रों में कुशल मानव शक्ति को सशक्त बनाने में इसकी प्राथमिकता के बारे में
जानते हैं। मंत्रालय ने 3 साल के समय में चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत 1 लाख से अधिक सहायक श्रमिकों की ट्रेनिंग करने की घोषणा की, जिसमें रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। मैं माननीय मंत्री आयुष विभाग श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज की इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए निमंत्रण किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय विकास की नई गति पकड़ेगा। अंत में मैं आयुष सेक्टर से जुड़े हुए सभी महानुभावों को आने वाले आयुर्वेद दिवस एवं धन्वंतरी जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा यहां उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों का इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द वर्ड्स। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अब डायबिटीज प्रोटोकॉल और PHI प्रोजेक्ट के ब्रोशर्स का लॉन्च करेंगे और साथ ही अनुरोध करूंगी मैं श्री केशव महांता सर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ असम सर, आपसे कि आप 2 शब्द भी साथ साथ कहें। गुड इवनिंग। भारत सरकार के ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस जी, आयुष का मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालू भाई जी, पेट्रोलियम, नेशनल गैस एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामेश्वर तेली जी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग का मिनिस्टर ऑफ स्टेट शांतनु ठाकुर जी, हम लोग मंत्रालय का सचिव राजेश जी, मंत्रालय का स्पेशल सेक्रेटरी पाठक जी, और ये सभा का जो कोऑर्डिनेट किया तनुजा मनोज नसारी जी, आज मेरा सौभाग्य है ये आपको सब केंद्रीय मंत्रीगण जो मंचों में उपस्थित है, केंद्रीय सरकार को सब, लेकिन our ex-chief minister of Assam and now the important minister of central government सर्बानंद सोनोवाल जी, मुझे कोई इस सभा में उपस्थित का लिए बोला था, इसलिए आपको साथ मिलने के लिए मैं सुयोग मिला, सौभाग्य मिला। इधर में जो है सारा लोग ये सब लोग वो मंजू
जनाब महेंद्र भाई ने बोला था कि ये लोग सब डॉक्टर, सब लोग ये है, सब लोग साइंटिस्ट आप लोग, और जो आउटगोइंग स्टूडेंट हैं उन लोग को भी हम लोग मिलने का मौका मिला। अभी ये जो आयुर्वेदा है, ये आयुर्वेदा भारत का, वर्ल्ड का सबसे पुरानी चीज है। ये मोदी जी से हम लोग इनको आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया। इसीलिए 2014 में जो ये आयुष मंत्रालय गठित हुआ, वो मोदी जी का प्रयास था। मोदी जी इंटरनेशनल लेवल में यूनेस्को में योगा को लेके, वर्ल्ड में योगा को बहुत प्रसार किया। इसीलिए हम लोग मोदी जी के पर आभारी हैं। और आज ये मुकाम में कुछ नया चीज आयुष में शुरुआत हुआ। इसका पहले कोई ब्लड बैंक नहीं था। आज ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ। ठीक ऐसे स्टार्टअप में दिया और कुछ नया चीज में, नया डिसिप्लिन में, और हम लोग का आयुष का न्यू स्टेप, नया स्टेप पहले बार के लिए हुआ। इसलिए मैं सोनोवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको लिए मैं एक बात बोलना उचित होगा, सोनोवाल जी हम लोग बहुत छोटे से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, स्टूडेंट वगैरह समझे हम लोग एक साथ में था। उनको हम लोग का अच्छा से मालूम है, वो जो जगह में खड़ा होगा उनका कुछ न कुछ वो निकालेगा। ऐसे आदमी हैं, उनमें आपके लिए बड़ा है। तो उनका साथ और असम स्टूडेंट यूनियन का वो टाइम से आज अगर 30 साल एक साथ में मैं हूँ उनका साथ, आपको सबको लिए मैं बहुत क्लोज फ्रेंड ऑफ द योर कैबिनेट मिनिस्टर एंड आई एश्योर्ड इट। सोनोवाल जी जहाँ जो काम में लगेगा वो काम में कोई ना कोई समक दिखाएंगे। वो बहुत मैं पहले आपको बोला, और हम लोग का भी सौभाग्य है मेरा स्टेट में वो जब आयुष का मिनिस्टर हुआ, वो नॉर्थ ईस्टर्न का सब स्टेट को एक साथ करके चर्चा भी किया, नया प्रोग्राम भी किया। उनका मिनिस्ट्री में 2 गुना 3 गुना बजट भी आ गया। हम लोग इसीलिए उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. So the address has happened and we are finally doing the launch. Let's congratulate the team for this moment. Thank you. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yet another very important milestone in today's agenda. We are now going to be launching Bal Raksha Kit and the immunity boosting Swarna Prashan, the golden drops. Well, amidst the threat of a possible third wave of COVID-19, the All India Institute of Ayurveda has developed an immunity boosting Bal Raksha Kit for children up to the age of 16. This kit has been made under the strict guidelines of the Ministry of Ayush, Government of India. This kit will help boost the immunity of children to help them fight common infections and keep them healthy. बच्चों की सेहत के बारे में अभी तक सभी बातें कर रहे थे, बट ये पहला कदम जो है वो उठाया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के
उनकी सारी जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करते हुए उनके साथ मिलकर ये इन्होंने एक किट बनाया है जो बाल रक्षा किट है, जो कि बच्चों को हेल्दी रहने में, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में मदद करेगी। और आने वाले समय में अगर किसी भी किस्म की दुविधा या किसी भी किस्म की हमें लड़ाई लड़नी पड़ी किसी बीमारी से या किसी भी ऐसी आपदा से, तो उसमें हमें ज़रूर ये मदद करेगी कहीं ना कहीं से। और यूं ही नहीं, इसका नाम स्वर्ण प्राशन यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स रखा गया है। ये इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही बहुत ही अद्भुत किस्म का ये ड्रॉप बनाया गया है। इसमें जो ये सिरप है बाल आयु रक्षा जो है, इसमें तुलसी, गुची, सिनामन, ड्राई ग्रेप्स, जैगरी और हनी और बहुत कुछ ऐसा है जो कि बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो अब इसका लॉन्च हम करेंगे और साथ ही यहाँ पर बाल रक्षा सूत्र का रिसाइटेशन होगा। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर कार्तिक टू प्लीज। Namaste all. The Bal Raksha in Ayurveda is conceptualized in 4 stages: pregnancy, labor, infancy, and adulthood. The Bal Raksha kit here is a culmination of all the 4. So here we would like to present the Bal Raksha Sutras that has been conceptualized and run in the operations of pregnancy, childbirth, as well as medicine administration.